Hello, dear children. Today we will be doing a poem I Am Lucky in our English reader. Hello, a very good morning to all my dear little ones. How are you? Today in the Marigold English Reader textbook, we are going to start a new unit. That is unit number 2. All of you will open your textbooks on page number 2020. First of all, you all know what you have to do. You have to write today's date 36/20/21 and class work. Unit 2. Now here it is a poem. What is the name of the poem? The name of the poem is I Am Lucky. Lucky. Listen and रिसाइट दिस पोएम. मतलब आपको क्या करना है, ये पोएम को सुनना है और उसके बाद आपको भी रिसाइट यानी कि गाना है. द नेम ऑफ द पोएम इज आई एम लकी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम. पहले हम पूरी पोएम पढ़ेंगे और सिंग करेंगे और उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे. बट बिफोर दैट यू कैन सी हियर द लवली पिक्चर ऑफ अ कलरफुल butterfly, which is really a very beautiful insect. Then this is a manna. This is fish which is always in the sea or the pond. And then there is a small little girl. You can see the face of the small little girl. और उसके बाद पेज नंबर 20 पे some more animals are there, like elephant. This is the elephant which is throwing water through its trunk. उसके बाद this is the kangaroo which you can see in the Australia. ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एनिमल है. एंड दिस इज द ऑक्टोपस अगेन विच इज़ अ सी क्रिएचर और अ सी एनिमल. ये स्पेशलिटी इसकी क्या होती है, इसके जो 8 आर्म्स होते हैं, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द ऑक्टोपस. नाउ वी विल सिंग द होल पोएम फर्स्ट एंड you all will also sing after me. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. Now here the name of the poet is not given. There are some new words also, which is butterfly, butterfly, myna, manna, fish, fish, kangaroo, kangaroo, octopus, octopus. Now one by one I'll explain the paragraphs of the poem. So first we'll start with the butterfly. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. So what is this is butterfly is telling that मतलब ये जो लड़की है यहाँ पर, the girl who is here, she is telling if I were a butterfly, अगर मैं butterfly होती तो मैं thankful होती butterfly के beautiful wings के लिए, because butterfly is known for its beautiful wings. बहुत ही colourful और प्यारे डिज़ाइंस वाले बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं जो सबको अट्रैक्ट करते हैं. सो इफ़ आई वर अ मैना, अगर मैं मैना होती तो मैं थैंकफुल होती क्योंकि मैं पेड़ पे बैठे बैठे मीठा मीठा गाना गाती और सब
सुनकर खुश होते। इफ़ आई वर अ सी इन द फिश, अगर मैं समुद्र में मछली होती। मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। तो समुद्र में तो बहुत पानी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। तो ये सी क्या फिश क्या बोलती है कि अगर मैं फिश होती और अगर सी में रहती तो मैं क्या करती, पूरे जो समुद्र में, सी में इधर उधर घूमती फिरती रहती खुशी खुशी। और सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। लेकिन लास्ट में वो क्या बोलती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं हूँ और तुम नहीं। नॉट यू बट मी, मैं तुम नहीं पर मैं हूँ, इसलिए मैं बहुत लकी मानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और आगे क्या बोलती है कि इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं थैंकफुल होती क्योंकि मैं अपनी ट्रंक रेस कर सकती हूँ। एलिफेंट की जो ट्रंक होती है उससे एलिफेंट बहुत सारे काम करता है। जैसे कि अपने को अगर शावर लेना है तो ट्रंक में पानी भर के अपने बॉडी पे पानी डालता है। फिर उसको जो है अपने ट्रंक से वो वुड को के लॉग्स को उठाता है। तो ऐसे एलिफेंट बहुत सारे काम जो है अपने ट्रंक से करता है। तो एलिफेंट होती तो बोलता मैं बहुत खुश होती, इसलिए थैंकफुल होती कि मैं अपनी ट्रंक को रेस कर सकती हूँ। और अगर मैं कंगारू होती, इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप। कंगारू कैसे चलता है? कंगारू कूदते कूदते चलता है, हॉप करता है। तो अगर कंगारू होती तो मैं कूदते कूदते कहाँ तक पहुँच जाती? मून तक पहुँच जाती। मैं ट्राई करती कि मैं हॉप करते करते मून तक पहुंच जाऊं। और इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। और अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं थैंकफुल होती अपने 8 आर्म्स के लिए। जो टेंटिकल्स होते हैं, ये जो होते हैं 8 आर्म्स होते हैं ऑक्टोपस के, जिसको कि हम टेंटिकल्स भी बोलते हैं या आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस भी बोला जाता है। और ये ऑक्टोपस भी जो होता है समुद्र में ही पाया जाता है। तो ऑक्टोपस होती तो मैं अपने 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल होती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। फिर वापस वो क्या बोलती है कि मैं वापस बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं हूँ। नॉट यू बट मी, तुम नहीं पर मैं हूँ। अब वो क्या पूछती है? वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी। अब वो पूछती कि आप क्या चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, मतलब मेरे जैसे आप खुश हैं कि आप जो हैं उसी से खुश हैं। और जस्ट यू मतलब आप अपने जैसे ही रहना चाहते हैं या किसी और के जैसे होना चाहते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लवली पोएम दैट आप क्या बनना चाहते हैं और अगर आप जैसे हैं वैसे ही हैं तो आप बहुत खुश हैं या नहीं हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। देयर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज हियर which is on page number 22, which says complete these sentences. यहाँ पर animals हैं and the actions that these animals can do. ये animals क्या क्या actions कर सकते हैं वो यहाँ पर हमको लिखना है। कहीं पर actions दिए हैं तो हमको animals लिखने हैं and at some places animals are given, we have to write the actions. Like a butterfly can fly, a manna can sing, a fish can wriggle, an elephant can raise trunk, a kangaroo can hop, and what you can do? You can do all these things. That means all the actions you can do. Now here it is. Let's talk. These are the question answers that we will do in the notebook. Now moving on to page number 23. There's again a small little poem. Let's listen. Kang has a dream. What is the meaning of Kang here? The meaning of Kang here is kangaroo. यहाँ पर कंगारू को कैंग बोला गया है और उसकी एक छोटी सी ड्रीम है, एक छोटा सा उसका एक सपना है। वो सपना क्या है? Let us see. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. ना यहाँ पर कंगारू का एक छोटा सा सपना, जब कंगारू सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है कि वो कैंग फ्लू into the sky, मतलब कंगारू कहाँ गया? आकाश में उड़ा। और वो he flew to the moon, आकाश में उड़ के वो मून तक गया। he flew through the cloud, मतलब एक क्लाउड में से पास होकर वो मून तक गया। और उसके बाद he slipped down a tree, और उसके बाद वो पेड़ से नीचे स्लिप हो गया और सडनली उसकी आँख खुल गई। और आँख खुलते ही कैसे आँख खुली? with a bang, मतलब ज़ोर से आवाज़ आई, वो गिरा और उसकी आँख खुल गई। सपना देखते देखते वो गिर गया और उसकी आँख खुल गई।
Now here are again some of the activities so that I'll explain you in the next video, dear children. But there's a small exercise over here. Let's draw. So यहाँ पर क्या करना है, complete the picture and label them. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ear दिया हुआ है, this is the ट्रंक है, देन दिस इज़ द आइज़ है, लेग्स है. तो हमको यहाँ पर उनको देख के क्या करना है, दिस इज़ द टेल. तो ये हमको यहाँ पर लिखना है. जैसे यहाँ क्या आएगा, ट्रंक आएगी. सो दिस इज़ द ट्रंक, दिस इज़ द ईयर दैट विल कम हियर, दिस इज़ द टेल दैट विल कम हियर. और उसके बाद जो छोटी छोटी उसके ईयर आइज़ है, ये उसके आइज़ है, ये जो आइज़ है वो यहाँ आएंगी, और ये लेग्स है उसके जो यहाँ पर आएंगे. तो इस तरीके से हमको जो है ये पिक्चर पूरा कंप्लीट करना है. दिस इज द आइज़. So there are two animals in this picture you can see. The first one is the elephant and second one is the dog. So three parts of the elephant's part of the body is given. This is the tail, this is ear and the trunk. Now this is the ear of a dog, this is the leg of the dog. तो यहाँ पर dog के legs है और ये dog के ears है, ये elephant का trunk है, ये elephant का ear है और ये elephant का tail है. Now next is your blanks. Fill in the blanks using the hint words given below. So what are the hint words that are given here? HOP hop, ROAR roar, SWIM swim and FLY fly. तो इस तरीके के वर्ड्स हमको यूज़ करके ये ब्लैंक्स फिल करना है. इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड HOP hop. इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड ROAR roar. If I were a fish, I would SWIM swim. And if I were a bird, I would fly. अब next page पर, पेज नंबर 25 पे you can see here say aloud, मतलब आपको जोर से बोलना है. OEOCTOPUS, that means octopus. BUTTT, butterfly, butterfly. Elephant, ELEPHANT, elephant. Then kangaroo, KNG, kanga and roo is your kangaroo. So this is the way you have to learn to read. ये आपको पढ़ने के लिए सिखाया जाता है कैसे आपको read करना है. Now this is let's draw. Complete the picture and draw some plants, shells and stones and fish. अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ plants और ये पत्थर और कुछ plants ड्रॉ किए हुए हैं, कुछ ग्रास ड्रॉ किया हुआ है और ये ऑक्टोपस का पिक्चर है. इसको आपको ड्रॉ करके कंप्लीट करना है and then you have to color this. So dear children, with this we come to the end of this explanation part. Now the question answers and hard words we will do in the next video. Dear children, we will take a look at the hard words of Unit 2 poem I Am Lucky. So first we'll start with BUTTERY, butterfly. THANKFUL, thankful. LUCKY, lucky. WINGS, wings. MYNA, mena. SING, sing. WRIGGLE, wriggle. GIGGLE, giggle. GLEE, glee. ELEPHANT, elephant. RAISE, race. TRUNK, trunk. KANGAROO, kangaroo. OCTOPUS, octopus. KANG, kang. FLEW, flew. THROUGH, through. CLOUD, cloud. SLIPPED, slipped. WOKE, woke. And the last one is BANG, bank. And CREATURE, creature. So these are the hard words that you have to write it in your notebook. Classwork one time and homework one time. उसके बाद ये जो पूरी पोएम अभी हमने आपको समझाई, ये होल पोएम दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक वन टाइम ओनली. ये पूरी पोएम वन टाइम लिखनी है. और उसके बाद की जो एक्सरसाइज हमने की है, जितनी भी एक्सरसाइज हमने जितनी भी की है, जैसे कि ये वाली ब्लैंक्स हैं, कंप्लीट द ब्लैंक्स. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक वन टाइम एंड आफ्टर दैट दीज ब्लैंक्स यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक वन टाइम. ये दो ब्लैंक्स आपको नोटबुक में वन टाइम लिखनी है. और टेक्स्ट बुक में भी पूरा सा
एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज, और उसके बाद ये एलिफेंट वाला पिक्चर वाला, और ये तीनों भी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। और उसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। टिल देन एंड देन यू हैव टू कलर दिस एंटायर पिक्चर। ये पूरा कलर करना है। आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से यहाँ पर फिश ड्रॉ कर सकते हैं, शेल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने पत्थर और ग्रास किया है, कहीं कहीं फूल किया है, तो आप यहाँ पर फिश वगैरह भी कुछ ड्रॉ करके अच्छे से कलरफुल पिक्चर आप अपने पूरे बुक में कर सकते हैं। सो अप टू पेज नंबर 25 you have to complete it in your textbook also. So dear children, till we meet on the next turn, bye bye and have a nice day. Bye.